मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डेडलिफ्ट इतने का पेल सकती हूँ तो ऐसे छुटकू को तो ऐसे उठा के पटक दूँ। 2 or 3 myths जो सबसे ज़्यादा हार्म करती है when a girl is trying to start her fitness journey. Okay, number 1. Women specifically, if you are watching this, you are losing your muscle mass after 30 every year. 3 to 5% आप lose करते हो. People think pulses are sources of protein. They are sources of incomplete protein. है ना? Explain करो वो complete कैसे होता है? एक चीज जो help करती है with good protein consumption is your period health, your menstrual cycle health for women. The cramps reduce. Oh really? For a lot of women, it's very judgmental. So when we look into the mirror, most of us are not happy with how we look. I feel much stronger, not just physically but emotionally. So I don't take a lot of bullshit from people anymore. It does not suit everybody, or women go wrong there. Anusha, welcome to our podcast here at Nutribay. कैसी हो आप? How are you? First of all, thank you for calling me, and I'm so excited to meet you after so long. I think 3-4 years. हाँ, जब तुम इतने से थे, ठीक है, अब तुम इतने से बन गए हो, and I'm so happy to meet you. सबसे पहले I want to ask you that PhD from JNU, 2 YouTube channels, 1.4 million से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, a business of your own जिसमें 1600 से भी ज़्यादा क्लाइंट, and yet you call yourself simple. ये क्यों? इसके पीछे ज़रा रीज़न बताइए. अच्छा, इसका मैं अगर आंसर दूँ तो मैं दिल से बता रही हूँ. आई स्टिल थिंक आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल. इन दिस वर्ल्ड वी हैव सो मच टू लर्न, एंड मैं आगे भी बहुत कुछ सीखूंगी, अपने कुछ एक्कोलेट्स ऐड करती रहूँगी. सो या, सिंपलिसिटी इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, एंड आई रियली बिलीव इन इट. इसलिए मेरे चैनल का क्या नाम है, सिंपल टिप्स अन्वेषा. तो हर एक चीज़ को, फिटनेस को भी बहुत सिंपली आप लाइफ में कैसे इनबिल्ड कर सकते हो, इसी वजह से माई चैनल्स नेम एंड व्हाट आई बिलीव इन. चलिए, great. You said that is how the name came up, Simple Tips Anvesha. I want to ask you, how did the channel come up? If I'm not wrong, you started your content creation journey at a time when content creation wasn't really cool. So Right. tell us what led to that. At that point of time, life में क्या क्या चल रहा था, and how did the content creation journey start? So it started in 2015 when nobody was doing YouTube. So I got married in 2014 and we went to Dubai, me and my husband, we went to Dubai for a short stint. ठीक है, उनका कुछ प्रोजेक्ट था तो हम गए थे. I had no friends in Dubai, so new life. I was in hostel, तो JNU में रहती थी. इतने दोस्त थे, मस्ती करती थी, हमेशा मेरे पास लोग रहते थे. अचानक आफ्टर मैरिज टू अ न्यू कंट्री, कोई नहीं है. सो यूट्यूब बिकेम माई फ्रेंड. सो आई यूज टू गो टू यूट्यूब. उस टाइम में बहुत होम ऐसे सिंपल वीडियोस लोग बनाते थे. बहुत कुछ गिने चुने इंडिया में ब्यूटी कम्युनिटी के कुछ लोग थे, उनको देख के मुझे लगता था ये मेरे दोस्त थे. फिर मुझे लगा अगर ये बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकती. मेरे जैसे बहुत लड़कियां ऐसे लोनली फील करते होंगे, अकेले होंगे. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. आई डोंट हैव माई फर्स्ट वीडियो, बट बहुत ही स्टूपिड सा एक वीडियो मैंने डाला था. क्या था उसमें? Oh my god. I made a video about what is the background of my house, or what is this lactocalamine. Sorry, मेरे पास एक lactocalamine था. मैंने बोला मैं ये ऐसे लगाती हूँ अपने फेस पे. I don't have that video. एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया में हर कोई उसके बारे में जानता है. You made a tutorial on that. Yeah, this is how you apply your lactocalamine. And I suddenly see I have 30 views on that. और 10 तो मेरे ही थे. But then 20 who are the odd 20 people? And I thought that there are actually people who are watching. And then occasionally I started putting videos. तो वही से मेरी स्टार्ट हुई. 2016 में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, पतंजलि एलोवेरा जेल. I just put reviews of products. So this was not branded. No. And उसमें ना मिलियन के व्यूज़. अब मिलियन व्यू हम भौखला गए कि क्या होता है भाई मिलियन व्यूज़. भाई हम तो स्टार है. दैट इज़ हाउ आई थॉट कि ओके मैं ये कर सकती हूँ. तब पैसे नहीं मिलते थे कुछ खास. देयर वाज नो मनी, बट इट वाज अ पैशन टू प्रोड्यूस सम कंटेंट. And then fitness came to my life in 2017 and I started sharing my YouTube channel में मेरी fitness weight loss journey, and that is how I became serious. वैसी बनी. So tell me a little about how life was before fitness started, and then what led to fitness becoming a daily part of your life. So I was detected with PCOD, polycystic ovarian disease. तो उसके लिए मुझे भयंकर एक्ने होते थे, हेयर फॉल्स, इरेगुलर पीरियड्स, कह सकते हो ऑलमोस्ट अ ईयर with no or irregular periods. 1 full year? Almost a year, yes. And I was so weird. I was like, नहीं यार ये क्या बात है? Doesn't matter. And I was gaining weight. I was bloated. बहुत ही ख़राब, नो एनर्जी. मैं तब काम करती थी PhD के साथ. I was also working. So मैं ऑफिस जाती थी. I used to come back and not feel like doing anything.
एंड देन यू नो फाइनली आई वेंट टू अ गायनैक एंड शी टोल्ड मी कि आप या तो वेट लूज़ करो या फिर मैं आपको पिल्स पे डाल दूँगी पीसीओडी के लिए. एंड दैट इज़ हाउ फिटनेस केम टू माई लाइफ. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर पीरियड्स लाने हैं, लाइफ को रेगुलर करना है, तो फिटनेस पे जाना ही पड़ेगा. इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितना था वेट? आई वॉज क्लोज टू 68-70 kg. उतना वेट था. टुडे एज आई स्पीक आई एम 51 kgs. So that is almost close to 20 kgs of transformation that I did. And with PCOD it was tough, but so worth it. टेल मी, व्हेन इन 2017 डॉक्टर ने ये सजेशन दिया, एंड देन व्हाट वर द इनिशियल फ्यू बेबी स्टेप्स दैट यू टुक टू स्टार्ट द फिटनेस जर्नी? क्या क्या किया, क्या क्या चेंज किया लाइफस्टाइल में? Okay. So I had a very bad lifestyle, okay? When I say very bad, I mean I enjoyed a bad lifestyle. So I had lived in hostel. तो हॉस्टल में आपको पता ही रहता है लाइफ कैसी होती है. आप सोते सोने जाते हो जब लोग उठते हैं. तो मेरा यही रूटीन था. इवन आफ्टर मैरिज आई यूज टू लाइक दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट आई विल स्टे अवेक टिल लेट एंड आई जस्ट नॉट केयर अबाउट माई ईटिंग हैबिट्स. आई वॉज अ ह्यूज शुगर एडिक्ट. वीकेंड्स मतलब पार्टी, दोस्तों से मिलना, वो मेरा एक गिल्टी प्लेजर कह सकते हो. आई टू लुक फॉरवर्ड कि ऑफिस के बाद कौन से दोस्त को पकड़ के जाऊँ मैं लेडीज नाइट. दिस वॉज माई लाइफ एंड आई टू लुक फॉरवर्ड टू दोज थिंग्स, यू नो. एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट कि भाई मेरी तो लाइफ बहुत मस्त है. तो ऑल दीज रीजन्स लेड अप टू वॉट आई वॉज सफरिंग फॉर, राइट. तो ये मेरी जो मैंटेलिटी थी कि पार्टी करना है, चिल करना है, लाइफ को एन्जॉय करना है. वॉट वॉज आई रनिंग फ्रॉम? माई ओन हेल्थ टू कट टॉस, राइट. सेकेंड जो मैंने स्टार्ट किया, घर पे खाओ यार, ऑर्डर करना बंद करो प्लीज़. घर पे इतना अच्छा हम खाना बना सकते हो. गेट अ कुक, यू नो, मेक बेटर स्टफ. अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन करे, घर पे बनाओ ना यार. दिन रात आप क्या ऑर्डर करते रहते हो. एंड शुगर. एंड लास्ट थिंग आई डिड वॉज आई वॉज नेवर इन टू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट एंड फिटनेस. तो ज़ीरो था लाइफ में. तो मैंने ब्रिस्क वॉकिंग से अपना वेट लॉस स्टार्ट किया. Brisk walking was the first step. And these changes, very basic things, but this is how I started. तो यू टोल्ड अबाउट द थोड़े थोड़े हैबिट चेंजेस दैट यू स्टार्टेड टू डू, जिसमें पहला था ब्रिस्क वॉकिंग. तो टेल अस अबाउट, स्टार्टिंग तो किया ब्रिस्क वॉकिंग से, फिर धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें की विच देन यू नो इंक्रीज द फिटनेस लेवल? So क्योंकि मैं बहुत मोटू थी उस टाइम, ओके. एंड सो द फर्स्ट थिंग आई डिड इज ना सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करना, बट यूट्यूब में ना जाके छोटे छोटे वीडियोस देखती थी, होम एक्सरसाइजेस टू लूज़ वेट. एंड सारे फॉरेन के यूट्यूब क्रिएटर्स आते थे. और मेरे पास ना एक वीडियो आज भी है. आई शुड रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड पुट इट ऑन माई ओन चैनल बिकॉज आई हैड क्रिएटेड अ चैनल एंड आई थॉट कि अगर मैं अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूँ, नॉट ओनली विल आई बी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ, बट माई फॉलोअर्स कैन ऑल्सो सी एंड कीप मी अकाउंटेबल. दैट हेल्प मी. सेकेंड, घर पे खाना स्टार्ट कर दिया, बाहर से ऑर्डर करना एकदम बंद कर दिया, ठीक है. आई ऑल्सो लिमिटेड माई शुगर इनटेक. तो मैं बहुत चाय पीती थी, बिस्किट्स खाती थी, यू नो, कुकीज़, ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मज़ा आता था मुझे सब खाने में. लिटरली स्टॉप ब्रिंगिंग देम एट होम. तो घर में खाओ. मैंने अपना वेट लॉस रोटी, सब्ज़ी, दाल, चिकन, फिश, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो ये मेरे डाइट पे स्टेपल था. बट इंक्लूडिंग दीज प्रोटीन सोर्सेज एंड घर का ही चावल एंड रोटी खा के ही मैंने वेट लॉस किया. बस मैंने अपना प्रोपोर्शन चेंज कर दिया. तो प्लेट बिकेम मोर बैलेंस्ड with lesser carbs, more protein and more fiber. That's how it is. You know, Anvisha, I want you to shed a little light on this because, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी माँ को बोलते रहता हूँ, अपनी दीदी को बोलते रहता हूँ. अस इंडियंस वी डोंट रियलाइज कि हम वो जो छोटी छोटी चटपटी चीज़ें कभी कभी खा लेते हैं, उनमें कितना कैलोरीज होता है. चाय में जो आप चीनी डालते हो वो कितना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए. जो डेली का 2 बिस्किट सुबह, 2 बिस्किट शाम को आप खा रहे हो, वो कितने कैलोरीज ऐड ऑन कर देता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, a fitness creator, but you are an expert also. You have certifications from 2 of these institutes. Yeah. So you are an expert जो इस बारे में बात कर सकता है. तो हमें ज़रा बताइए कि ये हिडन कैलोरीज जिसे कहते हैं, उससे आपका वेट कितना ज़्यादा बढ़ सकता है? जी, तो ये इंडियंस का ना एक बिंज ईटिंग हैबिट आप कह सकते हो. कॉन्स्टेंट स्नैकिंग रियलाइज लोग नहीं करते. एक और चीज़, इन केस ऑफ वुमेन, हमारे जैसे आपने बोला मम्मियों का केस, वी आर बिग इमोशनल ईटर्स, ठीक है. तो स्ट्रेस एंड ट्रॉमा आपको और भी खाने की तरफ ले जाता है और आपका गिल्टी प्लेजर हो जाता है.
वो आके आपको ऐसे कहेंगे कि अरे मैं तो और कुछ नहीं करती, इतना एक बिस्किट से क्या हो जाएगा, 2 बिस्किट से क्या हो जाएगा, और ऐसे करते करते दिन का 4-6 बिस्किट्स हो गया, ठीक है। फिर बीच बीच में थोड़ा सा चनाचूर के की बोले, व्हाट डू यू कॉल, सेव, चनाचूर, हाँ, सेव, चनाचूर। चनाचूर सेव, है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो ऐसे ही चटपटा, अरे बहुत अच्छा है। फिर अचार, इतना इतना अचार बना के खा जाएंगे, इतना इतना पापड़ ले लेंगे, 2-3 पापड़, तो ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो स्वाद के लिए है, ये स्वाद के लिए कह के इंसुलिन स्पाइक, एवरी टाइम यू स्नैक आपका एक इंसुलिन स्पाइक होता है। ऊपर से आपका प्रोटीन इंटेक इतना कम है, इतना कम है। बीट अ वेजिटेरियन, वो तो खैर बहुत ही लिमिटेड है, फॉर नॉन वेजिटेरियंस इन इंडिया ऑल्सो ये प्रोटीन इंटेक इज प्रिटी लेस, सो दे आर नॉट केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ प्रोटीन दैट taking in, the quality of protein that you're taking. Second problem with women in India, they will give their protein to the partner and not consume on their own. अच्छा, Yes, they'll choose the good quality and the good size, bigger size of protein for their husband or their sons, but not from themselves. ये मैंने मम्मियों को तो करते हुए देखा है कि मम्मियाँ यू नो द बिगर पीसेस ऑफ द पनीर और द बिगर पीसेस ऑफ द मीट वो बच्चों को दे देगी, खुद नहीं खाएगी. Especially if it's a man, even till date, the wife will prefer कि husband को ज़्यादा बड़ा पीस मिल जाए. And this is actually a sad reality of our country. They don't realize that women need more protein as well, or equal amount of protein. आपका पूरा जो hormones है, जो cycle चलता है, menstrual cycle, it's not as simple as a man's body, right? A woman's body and a man's body biologically different है. Even though you might not be hitting the gym all day, but still at home, even at home, you need your protein. So stop, sharing and giving up your protein. Eat that fish, eat that paneer. It's very much important for you. सबसे पहले तो सजेशन टू ऑल द मैन आउट देयर, ऑल द बॉयज़, अगर देख रहे हो कि अपनी मम्मी बिगर पीसेस ऑफ प्रोटीन, पनीर, मीट जो भी है तुम्हारे प्लेट में दे दे रही है, मेक श्योर कि मम्मी अभी उतना ही खा रही है, एंड मेक श्योर कि तुम्हारे पार्टनर्स भी उतना ही खा रहे हैं. ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके ही प्लेट में मैक्सिमम प्रोटीन आ रहा है. इन योर आंसर ये सवाल मेरे लाइन में तो थे लेकिन अभी के लिए नहीं थे, बट अभी मैं पूछूंगा बिकॉज तुम्हारे आंसर से ही मुझे ये मोमेंट मिला. तुम्हारे आंसर में तुमने मेंशन किया कि लोगों को लगता है कि प्रोटीन तो यार सिर्फ जिम गोअर्स के लिए रिक्वायरमेंट है. शेड सम लाइट ऑन दिस कि ये सच्चाई है या प्रोटीन एक्चुअली हर लिविंग ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन सबको लेनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इरेस्पेक्टिव कि आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, घर पे वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, आप प्रोटीन पे प्लीज़ फोकस कीजिए. इंडियंस, मोस्ट ऑफ अस नो वी आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन. आज तक पीपल डरते हैं प्रोटीन कंज्यूम करने से. उनको लगती है उनकी किडनी ख़राब हो जाएगी, लिवर फंक्शन करना बंद हो जाएगा, स्किन ख़राब हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, और उनमें कुछ सम आई डोंट नो फॉर सम वियर्ड रीज़न सम वुमेन स्टिल हैव दिस मिथ, प्रोटीन खाने से वो मस्कुलर बन जाएंगे. जिम भी नहीं, प्रोटीन खाने से मस्कुलर बन जाएंगे. तो दीज आर ऑल मिथ. आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग एज टू मच प्रोटीन. ठीक है, ये आजकल मिथ ये भी आ गया आजकल मार्केट में, देयर इज़ टू मच प्रोटीन. पीपल डोंट हैव दिस इशू ऑफ टू मच प्रोटीन, पीपल हैव दिस इशू ऑफ लेस प्रोटीन. आप अपना मसल मास एवरी ईयर, वुमेन स्पेसिफिकली, इफ यू आर वॉचिंग दिस, यू आर लूजिंग योर मसल मास आफ्टर 30 एवरी ईयर. 3 to 5% आप लूज़ करते हो. Hold on to that muscle mass. You're going to hit your menopause in 40s and early 40s, perimenopause का stage. आपके इतने hormonal issues चल रहे हैं. Please hold on to your muscle mass. Please eat your protein. आप अपने bone health को टिका के रखना चाहते हो ना, ना, you don't want to be बुढ़ापे में किसी और का सहारा. तो प्लीज़ अपने प्रोटीन्स को इंक्लूड कीजिए. Stop giving it to other people. Have it properly, please. ये तो एक मिथ बस्टिंग हमने किया, पता चल गया कि प्रोटीन एक्चुअली सबको ज़रूरत है, सिर्फ जिम गोअर्स को नहीं. सेकंड मिथ बस्टिंग, व्हाट यू मेंशनड रिमाइंडेड मी ऑफ अ मीम. रील पे एक या तो जिम में था या कहीं पे कोई एक लड़की को बोलता है कि अरे इतना हैवी वेट मत उठाओ, आपकी मस्कुलर बॉडी बन जाएगी. तो वो उसको बोलते हैं तो आपकी क्यों नहीं बनी अभी तक. या आई हैव सीन दैट, मैंने देखी है एक्चुअली. सो आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि ये मिथ है कि आप जस्ट इमीडिएटली डंबल उठाओगे तो आपकी मस्कुलर बॉडी नहीं बन जाएगी. लेकिन लोग तो ये कह कह के लड़कियों को डिस्करेज करते हैं कि आप जिम मत जाइए, आप प्रोटीन मत खाइए, आप डंबल मत उठाइए क्योंकि आपकी मस्कुलर बॉडी बन जाएगी. यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस बोथ व्हेन इट कम्स टू द डाइट एंगल एंड द वर्किंग आउट एंगल, क्योंकि फ्रॉम 2017 यू आर इन फिटनेस योरसेल्फ. तो शेड सम लाइट कि ये कितना सच है या कितना सच नहीं है. देखिए, आप मस्कुलर इतना, एक औरत के लिए आप मस्कुलर नहीं बन सकते जैसे एक आदमी बन सकता है, क्योंकि आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है
उसकी इतनी है ही नहीं, आपके है बॉडी में, सबकी होती है लड़कियों में, बट बहुत कम होती है, जिससे मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है. इवन आई हैव बीन जिमिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट नाउ, एंड आई रिकमेंड माई ओन क्लाइंट्स कि आप जिम में जाओ, वर्कआउट करो. चलो बहुत लड़कियों के पास समय नहीं होता जिम जाने के लिए, आप घर पे डम्बल्स, बारबल्स, केटलबल्स ऑनलाइन खरीद के करना शुरू कर दे. आप अपना मसल मास रिटेन करोगे तो आप अपना बोन हेल्थ को भी रिटेन कर पाओगे. आप अपने बाल, स्किन, एवरीथिंग यू कैन रिटेन विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड योर मसल्स इन योर बॉडी. नेक्स्ट थिंग, बहुत लड़कियां मेरे पास जो वेट लॉस करने, डाइट करने जो आते हैं क्लाइंट्स, वो मुझे कहते हैं मुझे हमेशा आपकी तरह टोन रहना है, टोन, बट मुझे जिम नहीं जाना, ये वेट्स नहीं उठाना. मैंने कहा आप टोन फिर कैसे हो? आप धनिया, जीरा पाउडर, ये सब पानी पी के टोन नहीं हो सकते. दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ दैट पीपल हैव. दे थिंक टोन मीन्स कि जिम या वर्कआउट नहीं करना है. वो कोई पानी बता दो, कोई डिटॉक्स ड्रिंक बता दो, उससे हम टोन्ड हो जाएंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टोन्ड. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टोन्ड. यू वांट दैट लुक, you have to be lean, fit, and you have to build muscle. And for life, you want to look younger and fitter and stronger, please lift your weights. At gym, at home, lift weights. You're not going to be bulky. वो जो आप देखते हो, a lot of people might be on steroids or something else, you don't know. So please don't shy away from lifting weights. I have been lifting from 2017-18. Do I look muscular? I don't look. I look like a normal person. But you have good muscles. Show your biceps. Okay, I have little, not a lot. Just a little one. But yeah, I'm not muscular. I'm just okay. What do you think? You tell me. Of course. अबे 1600 लोगों को आप ऐसे ही थोड़ी ट्रेन कर रहे हो नहीं, साथ ही but में. I'm just telling you. So this is a big thing, that myth that women have. So I'm dealing, especially women in their 30s, 40s. Even if you have not lifted 1 kg till date, start today. You're not late. You can start today. चलो, तुमने बताया कि 2017 से फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की, पहले तो घर पे ही एंड एवरीथिंग. सो वॉक मी अ लिटिल थ्रू द अपकमिंग फ्यू ईयर्स. 18, 19, फिर 20 आया, अ वेरी वर्ल्ड चेंजिंग ईयर Yeah, I know. बिकॉज कोविड हैपेंड. I know. तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो हाउ वर यू एबल टू कीप द फिटनेस हैबिट्स गोइंग? ओके, सो 2017 से स्टार्ट किया, 2018 में धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, वेट लॉस कर लिया था. 2019 तक अपना जो भी एक्स्ट्रा वेट था मैंने लूज़ कर लिया था. नाउ द नेक्स्ट चैलेंज वॉज टू गेट फिटर, एंड स्लोली आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई वर्कआउट्स मोर. आई स्टार्टेड गोइंग टू वर्कआउट क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, वेट लिफ्टिंग क्लासेस, मैं सब कुछ करने लगी. एंड देन बैम केम 2020 लाइक यू मैंशन. So again, my YouTube channel came handy. So I started lifting weight, buying dumbbells and lifting weights and all those kettlebells and barbells घर पे मैंने मंगवा लिया आराम से अमेज़ोन से, और फिर मैं घर पे ही अपना वर्कआउट करने लगी. एंड आई स्टार्टेड शूटिंग एंड शेयरिंग ऑन यूट्यूब. मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि सारे जिम सब बंद हो गए थे, पीपल वर क्लूलेस व्हाट टू डू. So my channel got a huge kick at that time. So because it was fitness, people were very conscious. Suddenly the world changed, right? सबको फिट होना था, सबको अपना ख्याल रखना था, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि कल का क्या होगा सीन है. There was so much uncertainty. So sharing my home workout videos with dumbbells, they got me millions of views, and that is when my channel, skyrocketed from lakhs and lakhs those 2 years. So I kept improving my workouts. I kept मेंटेनिंग माई डाइट. तब तो बाहर से खाने का कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो रेसिपीज़ अच्छे से हम लोग बना रहे थे और शेयर कर रहे थे. या देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, बट फिटनेस को लेके बहुत लोग पैशनेट हो गए थे उस टाइम, जो उन्होंने पहले कभी किया भी नहीं था. दैट वाज द टाइम इट स्टार्टेड, एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड माई बॉडी बेटर. आई डिड माई कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन. मैंने उस टाइम ना 2-3 साल मैंने लोगों को योगा, क्योंकि योगा पे भी मैंने सर्टिफिकेशन किया था, तो मैंने वो 2 साल मैंने सिखाया भी ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को. सो आई मेड श्योर दैट आई एम फिट एंड माई फॉलोअर्स आर ऑल्सो फिट. Tell us about the 2 certifications that you got. सो आई डिड फ्रॉम ईसा न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन एंड फ्रॉम प्रिसीशन न्यूट्रिशन, वो भी न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन. और मैंने योगा का भी किया है. आई एम अ हटा योगा टीचर, सो आई डिड इट. मल्टी टैलेंटेड एकदम. आई लव फिटनेस, एंड आगे भी मैं बहुत कुछ करी. आई एम गोइंग टू नाउ डू एस, तो मेरे को आगे सीखते रहना है. आई नेवर वांट टू स्टॉप, क्योंकि लाइफ है ना, आपको यू शुड अनलर्न एंड लर्न अनलर्न. दैट्स माई पॉलिसी. वेरी ट्रू. दिस रिमाइंडेड मी ऑफ अनदर, हम लोग जिम रैट्स है तो इंस्टा पे वही दिखते रहता है. देयर वाज दिस कोट विच सेड, इन द जिम यू आर ऑलवेज चेजिंग द फिटेस्ट एंड बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि आफ्टर वर्कआउट यू विल रिलेट एंड ऑल द जिम रैट्स विल रिलेट. वर्कआउट के दौरान तो आपको पंप मिलता है, राइट? सो राइट आफ्टर वर्कआउट योर बॉडी इज फुल्ली पम्प्ड.
यू आर चेजिंग दैट, लेकिन उसके 2 घंटे बाद वो पंप नहीं रहता, एंड देन विद इन अ फ्यू मंथ्स योर बॉडी बिकम्स दैट साइज ऑफ द पंप, बट देन आप जब वर्कआउट करते हो तो पंप बिकम्स इवन बिगर. सो यू आर ऑलवेज चेजिंग अ फिटर, बेटर, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन द जिम. जैसे तुमने कहा कि दैट learning never ends. No, it should not. Even in fitness it doesn't end. 2 questions I want to ask you. एक, तुमने कुछ आंसर पहले बताया था कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है. जी. वेजिटेरियन डाइट में तो है ही, नॉन वेज डाइट में भी कमी है. देयर आर स्टडीज दैट आर प्रूविंग के व्हेन इट कम्स टू इंडियन मेन द एवरेज हाइट इज 5.5 से भी कम. One of the reasons behind that is the protein deficiency. Tell us a little, how can an Indian household, first for non-veg and then veg also, अच्छे तरीके से मेक दैट प्लेट बेटर, हेल्दियर? Okay. So let's start. If you want to increase your protein intake, okay. So सबसे पहले तो लोगों को लगता है it's very expensive. It is actually not. Just stop eating outside and you see the amount of money you can save, okay. तो आपको सबसे पहले, if you are a non-vegetarian and if you eat eggs, excellent source of protein. Superfood. If you can digest eggs well, just get crates of eggs. आप वो इंक्लूड करो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम आपको टाइम मिलता है आप उसको इंक्लूड कीजिए. सबका अलग अलग कैलोरी काउंट होगा. अ मैन वुड रिक्वायर मोर देन कंपेयर टू अ वुमन, ठीक है. नेक्स्ट सोर्स, आप जब भी अपने मील्स, मतलब यूजुअली एक इंडियन मील प्लेट कैसे होता है लंच का, लेट से, हाँ, मोस्ट प्लेट वुड बी अ बिग बोल ऑफ राइस, बिगेस्ट बोल ऑफ राइस, अ छोटू सा बोल ऑफ दाल, उससे भी छोटा सा बोल ऑफ सब्जी, और अगर आप फिश या चिकन खाते हो तो थोड़ा सा एक छोटू सा फिश साइड में पड़ा हुआ है. और कभी कभी तो उस सब्जी में प्रोटीन सोर्स होता भी नहीं. नहीं, सब्जी में क्या प्रोटीन है, वो तो कुछ भी आलू होगा, मोस्टली आलू, ठीक है. तो या फिर छोटा सा पीस ऑफ फिश या पनीर, या वो भी नहीं रहता है. पनीर भी 2 टुकड़े पीसेस, 4-5 आलू और 2 पनीर, उसमें भी पनीर. दैट्स द रियलिटी. एंड अगेन अ वुमेन्स प्लेट यू सी इट्स डिफरेंट, लाइक आई टॉक्ड अबाउट उससे पहले. तो उसको चेंज करना बड़ा ज़रूरी है. आप चेंज बहुत इजीली कर सकते हो. आपका जो मील प्लेट है उसमें राइस का अगर आप क्वांटिटी कम कर दो, फिर आपका जगह बचेगा, राइट. सो मैं यूजली कहती हूँ कि आप एक प्लेट को लीजिए एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. सो 1 पार्ट विल बी योर कार्ब्स, कैन बी राइस और रोटी, वट एवर यू टेक. द अदर पार्ट इज गोइंग टू बी योर आइदर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. फॉर अ वेजिटेरियन इज गोइंग टू बी आइदर पनीर और सोयाबीन. फॉर अ नॉन वेजिटेरियन इट कैन बी आइदर चिकन और फिश, और इफ़ यू आर एग ईटेरियन देन एन एग, ओके. फिर आता है हमारी जो आपकी जो सीजनल सब्जी या दाल जो आप प्रेफर करते हो खाना, ये आपका टेस्ट बड भी तो इंपॉर्टेंट होता है, राइट. इट्स नॉट जस्ट प्रोटीन एंड कार्ब, इट हैज़ टू बी टेस्ट. तो जो भी सीजनल सब्जी है, बिकॉज यू नीड ऑल दोज थिंग्स एंड और द पल्सेस दैट यू लाइक. बिकॉज वन मोर पॉइंट, people think pulses are sources of protein, they are sources of incomplete protein, they are not. Yes. इसको जरा एक्सप्लेन करो. लोग बोलते हैं दाल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दाल सोर्स ऑफ इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है. एक्सप्लेन करो वो कंप्लीट कैसे होता है. आप दाल एंड जब चावल के साथ मिला के खाते हो तो यू गेट एन कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल. इट बिकम्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट स्टिल बायो अवेलेबिलिटी दाल का उतना नहीं होता है जितना हमारे सॉलिड सोर्स ऑफ प्रोटीन से होता है. एंड सॉलिड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका डेयरी हो जाता है, आपका मीट हो जाता है, आपके एग्स हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद ये हो गया. एंड द लास्ट विल बी योर सैलड्स. यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड योर सैलड्स, योर ग्रीन्स. दैट इज हाउ यू गोइंग टू गेट योर फाइबर इंटेक. सो ऐसे आपका प्लेट अगर कर दोगे ना, सॉर्टेड भैया, आप सॉर्टेड हो जाओगे. चिल करो, उसके बाद आप एन्जॉय करो. वन मोर थिंग यू शुड ऑल्सो ऐड, इफ़ योर गट अलाउज यू, देन योगर्ट और कर्ड और बटर मिल्क. Probiotics are also important for your gut. After this plate is done, please favor yourself some nice probiotics. I have my team sitting right here, और हर मील में ये लोग देखते हैं कि मैं ऐसे 2 बोल में ऐसे 400 ml दही आई पुट डाउन, एंड देन वो हर मील के साथ में खाते रहता हूँ ड्यूरिंग बोथ माई मील्स, क्योंकि प्रोबायोटिक भी उतना ही जरूरी है. एंड दही इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन आल्सो. फॉर वेजिटेरियन तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं ऑप्शन. आप और कुछ नहीं तो ग्रीक योगर्ट ले लो, इतना हाई प्रोटीन आजकल तो मिल रहा है मार्केट में. फैट भी उसमें कम, कार्ब्स भी उसमें कम. दाल का एक छोटा सा और एलिमेंट मैं बोलना चाहता हूँ कि, और कभी कभी आर्ग्यूमेंट वेजिटेरियन से ही आता है कि यार 100 ग्राम, कुछ 100 ग्राम दाल में आपको 16 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है. अब ज़रा आप हमें बताइए कि वो 100 ग्राम दाल पकने के बाद कितना बन जाता है. मतलब आपको बेसिकली शायद 4-5 बाटी दाल खाना पड़ेगा. हाँ, और इतना डाइजेस्ट कैसे कर पाओगे? आप ब्लोटेड हो जाओगे. यू विल बी सिटिंग इन द वॉशरूम फॉर आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग. यू कैन नॉट डाइजेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ दाल. एंड अगेन द प्रॉब्लम विद दिस इज योर बॉडी एबल टू बायो अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है. तो एक्सप्लेन बायो अवेलेबिलिटी.
तो सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो होते जो एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में, सब कुछ बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. तो दाल, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ऑफ कोर्स यू कंबाइन इट विथ योर रोटी एंड योर सब्जी टू मेक इट मोर बायो अवेलेबल, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी प्रोटीन लाइक योर मीट, डेयरी. तो आप दाल प्लीज़ इंक्लूड कीजिए. आई एम नॉट टेलिंग यू टू नॉट इंक्लूड दाल. ये पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड कल्चर. इवन आई एम अ बिग दाल लवर. आई लव दाल्स. बट उसके साथ हाउ आर यू बैलेंसिंग योर प्लेट विद बेटर क्वालिटी प्रोटीन, उस पर हमें जाना है. सो देन वी आर गोइंग टू डू डेयरी और मीट. एब्सोल्युटली. बेसिकली दाल कांट बी योर मील का मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. दैट इज व्हाट. इतना सा 3-4 ग्राम मिलेगा शायद आपसे. इतना ही तो खाओगे ना, 3 ग्राम से क्या हो जाएगा. कितना दाल खाओगे आप? दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू आस्क माई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में वो थोड़ा बाद में आता है, लेकिन मैं अभी पूछूंगा. जी पूछिए. लेट्स टॉक अबाउट बेटर ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन, बायो अवेलेबिलिटी, बेटर absorption. Let's talk about supplements. Let's talk about either whey protein or some other supplement protein. कब से लेना स्टार्ट किया, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? सो आई कंज्यूम प्लांट प्रोटीन बिकॉज मुझे PCOD है. सो आई कैन डाइजेस्ट प्लांट प्रोटीन मच बेटर देन वे. I also have whey isolate sometime on and off just to have a change in taste and all. My performance at the gym has definitely improved. I sleep better. I feel better. My hunger pangs have significantly reduced because जब आप प्रोटीन खाते हो तो आपका हंगर पैंग्स, यू फील फुलर, यू फील बेटर. ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ. ये टर्म है हाई सैटाइटी फूड. प्रोटीन एक बहुत हाई सैटाइटी फूड है. हमारी जो एक्सपर्ट गेस्ट है वो आपको एक्सप्लेन करेगी कैसे, क्यों जब आप प्रोटीन खाते हो तो आपको हंगर पैंग्स या क्रेविंग्स कम लगती है. प्लीज एक्सप्लेन. जी. सो फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे शुगर क्रेविंग्स होती है, ठीक है, तो सबसे जो मैंने नोटिस किया है, रादर देन going ahead with some chocolates or cookies, I will always take protein. ठीक है, एक स्कूप प्रोटीन ले लिया with water, और मैं तो मिल्क नहीं लेती, with almond milk or any kind of milk. I am completely satiated and that is why I recommend कि आप प्रोटीन खाओ, क्योंकि आपको हाई वॉल्यूम पे भी नहीं जाना है. द बेस्ट पार्ट अबाउट हैविंग अ वे प्रोटीन और अ प्लांट प्रोटीन इज़ यू डोंट हैव टू इनटेक अ लॉट ऑफ कैलोरीज. तो अगर आप कम कैलोरी में आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाती है तो यू आर गोइंग टू गो फॉर दैट, राइट. सो इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि आपको जब क्रेविंग्स होती है या हंगर पैंग आता है, आप सबसे पहले प्रोटीन आप खा लो, ठीक है. तो उससे आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ गई, आपकी जो भी क्रेविंग्स है, हंगर पैंग्स है, कम हो गई. आपको एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो मैंने पर्सनली देखा है विथ माई पर्सनल स्टडीज़ एंड माई केसेस, इज़ दैट ये आपको इवेंचुअली वेट लॉस में भी हेल्प करती है. when you consume protein and you are not getting hunger pangs and you are feeling satiated for a very long time, your weight loss eventually happens because आपकी snacking की जो tendency है वो control हो जाती है. and that is the best part. एक और चीज़ जो help करती है with good protein consumption is your period health, your menstrual cycle health for women. The cramps reduce. Oh really? That is the best part. You know, your cramps when you're eating better food, because you're not going, it's not directly related, it's indirectly related. So you're not snacking constantly, you're not having hunger pangs, right? So you're not having a lot of junk, you're not going for sugary foods. So आपने जब प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम किया either through food or through supplement, तो आपके period cramps reduce हो जाते हैं. Wow. एंड दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. तो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको सटाइटी भी दे रही है, आपको मूड स्विंग से भी, आपके मूड स्विंग्स इतने बेटर हो जाते हैं व्हेन यू आर ईटिंग गुड क्वालिटी प्रोटीन. आपके मूड स्विंग्स बेटर हो जाते हैं. यू नॉट फाइटिंग विद पीपल अराउंड यू जस्ट वॉन्ट टू मेक योर लाइफ बेटर. सो या दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो डेफिनेटली दैट इज़ वाई टेल वुमेन प्लीज इंक्लूड प्रोटीन in your diet and stop sharing your protein with other people. तुमने कहा था कि तुम वे प्रोटीन नहीं लेती, तुम प्लांट प्रोटीन लेती हो. टेल अस द रीजन बिहाइंड दैट. So I have PCOD and for me it's very difficult to digest milk. Any kind of mostly all kinds of dairy but specifically milk. So because whey is made out of milk, तो मेरे लिए वो digest करना difficult होता है. So for me it causes a lot of inflammation and bloating issues. तो इसी वजह से I have switched to plant protein. It's easier for me to digest and it has no problems with my PCOD concerns also. So that is why I like the taste. You know that is actually great क्योंकि हमारी जो R&D टीम है, हमारी R&D टीम एंड हमारी न्यूट्रिशनिस्ट टीम, they actually put this into consideration and this was one of the major reasons why Nutrabay का एक latest product launch हुआ है कुछ 1.5 months पहले. It's called BioAbsorb. BioAbsorb में एक patented formula use किया गया है called Prodify, which is with probiotics, digestive enzymes and fiber.
Okay. एंड इसके पीछे का जो मेन रीजन रखा गया है वो यही रखा गया है दैट द अब्जॉर्प्शन एंड द डाइजेशन बिकम्स क्विकर एंड ईजियर. Okay. So maybe you can give BioAbsorb a shot and then Yeah, tell yeah, us. definitely. I'll let you guys know once I'm doing that. Perfect. You know, I want to ask you a question on this कि मूड स्विंग्स बेटर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. और ये तो मैंने खुद अपने लाइफ में भी देखा है. जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, माई मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम मच बेटर दैन वॉट माई मेंटल हेल्थ वॉज बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. थोड़ा सा शेड सम लाइट ऑन दिस कि ये किस तरीके से कनेक्टेड होता है, कोरिलेटेड होता है. जो वर्कआउट करते हैं बहुत सालों से, बहुत महीनों से, उन्हें पता है दैट योर फिजिकल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ. लेकिन जिन्होंने शुरू अभी तक वो जर्नी नहीं की है, उनको अभी तक ये पता नहीं चला है. तो उसके बारे में ज़रा बताइए. Okay. So you want to connect workout with mental health, right? बेसिकली अ फिटर बॉडी ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ फिटर माइंड, है कि नहीं? True, true. Very good question, actually. So there's something even, for a lot of women specifically, because as a female person who also deals with female every single day, we have been conditioned to look at ourselves in a certain way. We are very judgmental, you know. So when we look into the mirror, most of us are not happy with how we look. हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, हम थोड़ा मोटे हैं, कपड़े फिट नहीं हो रहे, ये तोंद आप बाहर आ रही है, हम ब्लोटेड है, पिंपल्स है, हेयर फॉल है. हम कॉन्स्टेंटली खुद को जज करते रहते हैं. एक वो देखो, दुनिया तो हमें जज करती रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमेंट्स. इवन वेदर यू आर क्रिएटर और इन नॉर्मल लाइफ, घर पे बाहर लोग आपको कमेंट्स एंड ताने मारते रहते हैं. ऊपर से आप जब खुद को देखते हो ऑन द on the mirror and you're not feeling good, you're constantly telling those things to yourself. वो एक affirmation है. And this happened with me also. ठीक है, 2017 से पहले I was very negative and very judgmental about myself. I was not happy with the way I looked. It has been a struggle, and for a woman it's always going to be a struggle. But workout eventually has helped me because एक तो of course lost that excess weight. Now you're much more toned with developing some muscle, losing your fat. So I have seen that I have become much more kinder to myself. I feel so better if I can hit a PR. अगर मुझे स्क्वाट करना है अपने बॉडी वेट से ज़्यादा और मेरे से वो हो गया, आई फील सो गुड. अगर उस दिन मैंने अगर मैं उस दिन 2 किलो ज़्यादा भी वेट करूँ, आई डोंट केयर बिकॉज आई हैव लिफ्टेड दैट वेट. तो अब मुझे वेट या हाउ आई लुक या एक एक्नी, दैट विल नॉट बॉदर मी एंड डिफाइन मी बिकॉज आई नो यार आज तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के आई हूँ, आज तो मैंने फोड़ा है. बहन तूने आज फोड़ा है. यू स्टॉप criticizing yourself with small things like an acne or hair fall or bad hair or bad whatever, this bloating issues. So I really tell you कि वर्कआउट ने मेरे लाइफ में जो इम्पैक्ट किया है ना, इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के पर आई गो टू द जिम. लवली. Yeah, I'm very sure Sunday I don't miss my workouts. I'll go to the gym. So that is what I was, even in the morning when I was coming to this podcast, Korak, I told my mother-in-law that मम्मी उसके बाद मैं जिम जाऊंगी, फिर मैं घर आऊंगी. You're carrying your gym clothes? Yeah, I have it. Lovely. Okay, I'll go to the gym. मतलब मेरे जिम में facility है to keep my stuff, so I've kept it there. Perfect. तो I actually told her that I'll go to the gym and then I'll come back home. My mother-in-law was very happy. She told me, my nickname is Dona. She told me कि Dona, wow, ये तुम्हें बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी हो, जिम तुमको जाना है. क्या बात. Because मम्मी, it's related to my mental health. अब मैं उससे परे हूँ. How I look, I don't care. It's my mental health. Because I've stopped judging myself, and that is the best thing that gym has given me. मैं मोटू थी तो लोगों ने बोला था, फिर मैं पतली हो गई, फिर लोगों ने फिर बोला. अब भी कुछ सेक्शन लोग हैं जो मुझे कहते हैं अच्छा मर्द बन रही हो, कमेंट सेक्शन में. बट देन देर आर सो मेनी पीपल हु ऑल्सो टेल मी वाओ कितनी टोन लग रही हो. बट देन इट डजंट मैटर, दैट नॉइज डजंट मैटर, क्योंकि मैं खुद को देख के खुश हो जाती हूँ. मैं बोलती हूँ वाह अन्वेषा, अब तो तू फोड़ रही है बहन. You told about your mother-in-law का reaction. That was such a heartwarming, lovely reaction to hear about. Tell me a little family का support, especially मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन से शादी के बाद आप PCOD के लिए फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हो या फॉर एनी रीज़न आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हो, फैमिली का जो इमीडिएट फैमिली का जिनके साथ आप रह रहे हो उनका सपोर्ट कितना ज़रूरी हो जाता है और कितना सपोर्ट मिला आपको स्पेशली फ्रॉम हस्बैंड एंड मदर इन लॉ? सो यार देखो, जब मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन माई लाइफ, मैं खुद जिम जाऊँगी. एक तो मैं बहुत खुद से ही मोटिवेटेड थी, तो मुझे किसी की ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी.
बट उससे क्या फ़ायदा हुआ कि माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो गॉट कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ. दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपन इन माई केस. इनिशियली आई वॉज द फ्लैग बेरर कि मुझे ही करना है, एंड फिर देखते हैं. तो जैसे मैं जिम जाती हूँ, खाने डाइट पे घर पे कंट्रोल रखना, अब वो घर वाले देखते हैं एंड दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कि वो भी अब जंक नहीं खाते. जैसे पापा को डायबिटीज़ वगैरह के इशू है, तो पहले वो बहुत स्वीट खाते थे, तो अभी जैसे घर पे आएगा नहीं तो वो भी नहीं रहते. सो ये दिस इज अ म्यूचुअल थिंग दैट हैपन. ऑफ कोर्स दे आल्सो मोटिवेट मी कि हाँ हाँ जिम जाओ, जिम करके आओ, हम घर पे हम देख लेंगे ये काम, या फिर तुम अपना डाइट देखो या क्लाइंट कॉल्स. जो मैंने अपना फिटनेस को पैशन बना लिया, फुल ऑन सपोर्ट की, आप अपना पैशन फॉलो करो, वी आर हियर विथ यू. एंड वो म्यूचुअल रहता है, क्योंकि घर पे खाना जैसे बनेगा तो सबके लिए वैसे ही कम तेल वाला खाना, चीनी नहीं डलना खाने में. पहले तो वो भी होता था कि बिकॉज वी आर बंगालीज, तो घर पे खाने में चीनी डल जाता था हर एक खाने में. कंप्लीटली स्टॉप दैट. स्वीट्स आ जाती थी, मिठाइयाँ आ रही है, चॉकलेट्स, कुकीज़, ये सब आना ही बंद हो गया. सो दैट कंप्लीटली द फैमिली हैज़, if one person changes na, the entire family looks at it as an example and then the change happens. lovely. Tell me a little about, जैसे तुमने अभी बताया कि पैशन को एक और लाइन ऑफ प्रोफेशन भी बनाया, योर हेल्थ एक्सपर्ट फर्म दैट यू हैव, उसके बारे में थोड़ा बताइए. कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्लाइंट्स बढ़ने लगे, आने लगे? टेल अ लिटिल अबाउट दैट. So since I have been doing YouTube for a very long time and sharing my fitness journey, then I did my certification. So 2020 से ही पहले तो मैंने खुद ही स्टार्ट किया था. I was doing alone, so I put up posts on YouTube कि I am starting my consultation and please you can come and join me. And of course a lot of my followers who were following me उस time तक, they only became my clients. Till date all my followers are my clients. So इट्स ऑल माई, मतलब प्रमोशन जो भी होता है, आज तक ना तो मैंने कोई गूगल पे ऐड किया है, ना कोई फेसबुक ऐड. इट्स बीन ओनली इन माई हम्बल इंस्टाग्राम एंड माई हम्बल यूट्यूब चैनल. ऑल ऑर्गेनिक. ऑल ऑर्गेनिक. आई एम वेरी ग्रेटफुल. बोल रही है हम्बल, लेकिन 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है कंबाइंड ऑन इंस्टा, नहीं ऑन यूट्यूब. ऑन यूट्यूब बट क्या है ना, वो मुझे लगता है मैंने वो बॉन्ड क्रिएट किया है. बिल्कुल. मैं इसलिए अपना नाम, मुझे लगता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे यही लग रहा है कि वो एक्चुअली सिंप्लिसिटी लाना चीज़ों में, कुछ कॉम्प्लिकेट ना करना. बहुत लोग ना डाइट प्लान्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और उनको औरतों को चाहिए अपना फेवरेट खाना खा के. मैंने भी ऐसे ही वेट लूज़ किया था, अपना चावल खा के, रोटी खा के, घर का खा के, सिंपल खा के, थोड़ा बेटर करके वेट लूज़ करना. तो आई थिंक वो बॉन्ड मैं क्रिएट कर पाई थी, जिसकी वजह से आज तक 5 साल में it's going, touch wood, it's going very well. I have a lovely team of 3 dietitians. They are all medical professionals with me and we take one-on-one consultation. मतलब ऐसा नहीं कि एक AI के साथ अब बैठो, मैं एकदम पर्सनली घुस के देखती हूँ और घुस के पूरा देखती हूँ कि आपके लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है. मतलब सिर्फ ये नहीं कि डाइट प्लान करना, बट उनके मेंटल हेल्थ कैसी है, फैमिली क्या बैकग्राउंड है, उनका कोई मेडिकल इश्यूज़ है कि नहीं. बिकॉज अ वुमेन नीड्स अटेंशन एंड केयर. ऑल ऑफ अस नीड्स दैट. और अगर वो मिल जाए आपको along with a guided nutrition and workout guidance, then why not? So that has helped me. वही से start हुई and gradually अभी तो personally 1675 clients personally कर लिया है. 1675 clients. Lovely. Personally I've done just for diet. So it's going touchwood well. Tell me about 1-2 of the success stories that you remember तुम्हारे clients से, जिनका मतलब drastically फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्दियर अभी बन गए हैं. या सो अभी जो वो है, ही इज़ अ पुलिस कमिश्नर वेस्ट बंगाल में. ओह वाओ. एंड ही स्टार्टेड विद अस एट 99 and now he's lost all his unhealthy weight. He's 80 kgs right now and he's maintaining it with us for many months. Lovely. Every month he just wants to continue with us कि नहीं, as a police professional it's very important for him to maintain that weight. बिल्कुल. अगर वो पुलिस वाला ही अनहेल्दी हुई तो उनको यूरिक एसिड था, कोलेस्ट्रॉल था, डायबिटीज़ था, क्या नहीं आप गिनवा लो, सब कुछ था. बिकॉज उनका लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसे बन गया था. बट लकीली विद अस ही लॉस्ट ऑल दैट वेट एंड ही इज़ बीन मेंटेनिंग एंड इज स्टिल विथ मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. तो अभी तो मुझे, क्योंकि अभी मैं आपके यहाँ से आने से पहले ही उनसे बात कर रही थी, तो मुझे जस्ट ऑन द थिंग उनका याद आ गया. मतलब बहुत लोग हैं. बट देयर इज़ वन मोर क्लाइंट, अभी उनका नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगी. She also just completed her 12 weeks program with us. She was 54 years and she lost 7.5 kgs in 12 weeks. Wow. With thyroid and diabetes. So उनका भी काफ़ी अच्छा है. So I have all age groups. I have 20s का भी है, 60s का भी है. 65 is the maximum age group that I have catered to. And even she lost 3.5 kgs in 4 weeks with us. So yeah.
लवली. तुम्हारी जो पहली केस स्टडी तुमने बताया, दैट रिमाइंडेड मी, दबंग 1 में सलमान खान का एक डायलॉग था. वो गाड़ी से निकलते हैं और बोलते हैं कि मोटे वाले राइट जाओ, पतले वाले लेफ्ट जाओ, फिट वाले मेरे पीछे रहो. देन ही लुक्स बैक और एक भी फिट पुलिस ऑफिसर था नहीं. सो ये अपनी लाइफ स्टोरी मत होने दीजिए, फिट बनिए. So another interesting observation that I had in 5 years is about doctors. A lot of these healthcare professionals जो आपको देखते हैं, आपको cater करते हैं, but उनका work उनके खुद के fitness के तरफ ध्यान देने के लिए permission नहीं देता. Right. So I have a lot of clients who are doctors, but they are extremely unfit and unhealthy and obese. So I am, helping them out to lose weight, and because of their very hectic schedule, because उनको सबको देखना होता है, but उनके लिए मतलब उनके पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं होता. So that has been a very good alarming and a noteworthy thing for me as well, कि जो हेल्थ केयर फिटनेस इंडस्ट्री में है वो खुद का हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पाते. सो कि खुद की कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है खाना खाने का, कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, कोई अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कुछ दवाई खा लो, मतलब डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन. Exactly. बिकॉज दे डोंट हैव अ टाइम ओनली. Correct. और कैंटीन में भी दे हैव अ लॉट ऑफ अनहेल्दी ऑप्शंस. ये बहुत ही वियर्ड है कि हॉस्पिटल में वेर यू शुड हैव हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स, दे हैव कुकीज़ एंड मफिन्स फॉर देम, तो वो क्या ही खाएंगे. आई वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन. FSSAI ने अभी बहुत रिसेंटली ये अपने लॉ में डाला है कि हर गवर्नमेंट कैंटीन जो होगा वहाँ एक समोसे से लेके एक जलेबी तक भी आपको उसके नीचे न्यूट्रिशनल डिटेल्स डालने पड़ेंगे. जी. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, और ये कितना तुम्हें लगता है कि हेल्प कर सकता है? इट कैन हेल्प, बट अगर समोसे एंड जलेबी आप रख रहे हो तो फिर और क्या ऑप्शन क्या है? आई लव इट. मतलब अब चाहे आप न्यूट्रिशनल डिटेल्स दे भी दो. हाँ, समोसे और जलेबी का क्या करोगे न्यूट्रिशनल वैल्यू को, सबको पता है. मतलब why are you having a nutritional value of these kinds of food? वैलिड. रादर चेंज ये होना चाहिए कि डाइट में आप थोड़ा हाई प्रोटीन ऑप्शंस भी डाल दीजिए, आप थोड़ा एक लो कार्ब. ग्रीक योगर्ट रख लो, और कुछ नहीं तो एक ग्रीक योगर्ट रख लो. चलो कुछ स्प्राउट सैलड, कुछ फ्रूट्स रख लीजिए आप, एग्स के ऑप्शन रख लीजिए. वेजिटेरियन के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? यूज जस्ट स्प्राउट्स. Sprouts can be a great option. You can have chana salads वगैरह, you can have paneer salads, you can have tofu salads. टिक्की बना के रख लो, सोया की टिक्की, टोफू की टिक्कीज बना के, पीस पनीर का अमेजिंग टिक्की बनते हैं, एंड दे कैन लास्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो. ग्रीक योगर्ट रख लो, some healthy protein bars also you can keep. So there are a lot of options. ये समोसा जलेबी इनके बिना तो मतलब इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू लेके आप क्या करोगे अगर ये आपके पास ऑप्शन है. वैलिड, वेरी वैलिड. Right. आई वांट टू आस्क यू दिस वन क्वेश्चन. सोचिए कोई यंग लड़की, और डजंट इवन हैव टू बी यंग, कैन बी 25, कैन बी 35, फॉर सम रीज़न PT यानी कि पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, डाइट कोर्स लेने का भी अभी ऑप्शन नहीं है, has to start on her own. Maximum she can do is YouTube videos. What will be your suggestion towards her? क्या lifestyle changes कर सकती है to get to a fitter, healthier version of herself? Start working out at home. Just buy a yoga mat and few dumbbells. 5 kg is a great way to start. Second, cut out those food delivery apps, क्योंकि you are ordering from that and wasting a lot of money. वो बंद करो. Start meal prep. People don't meal prep and then don't understand कि meal prep से आपके पास जब meal prep रहेगा, आप cravings आपकी कम हो जाएगी, आप बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दोगे, एंड यू कैन रिपीट द सेम काइंड ऑफ फूड. ऐसा नहीं कि आपको डेली वैरायटी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप 3-4 दिन सेम चीज़ खाइए ना. आप मील प्रेप करके घर पे, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर को मील प्रेप करके रख दीजिए. जस्ट सॉटे इट एंड हैव इट. व्हाट इज़ द बिग डील? कट चॉप योर वेजिटेबल्स. ठीक है, एक स्टैंडर्ड ग्रेवी बनता है इंडियन का, इंडियन करी था तो स्टैंडर्ड ग्रेवी, थोड़ा सा वो प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली डाल दो टेस्ट के लिए, सॉल्ट वॉल्ट डाल के बना के रख दो, उसमें ही सारे आपके सोया की पनीर की ग्रेवी कुछ भी बन जाता है यार. व्हाट इज़ द बिग डील? ठीक है, राइस को बैच कुक कर लो, रोटी आटा गूंद के रख लो. आप ये सब अगर मील प्रेप कर लोगे ना, so you are sorted, you don't need help. And next thing is improve your active to passive ratios. Now since you are very young, active to passive ratio माने आजकल sitting is the new smoking, right? We are always sitting in front of the laptop, working, watching reels, Netflix and all this, sitting and doing. So since you are young, please improve your active to passive ratio. Constantly don't keep sitting all the time. ठीक है, 1-1.5 घंटे में उठिए,
10-15 मिनट थोड़ा चल लीजिए, इवनिंग में गो फॉर अ वॉक, नाइट पे गो फॉर अ स्ट्रोल, यू हैव दैट ऑप्शन राइट नाउ, सो यूटिलाइज दैट टाइम दैट यू हैव, कीप मूविंग. Sleep. Oh my god, it's so underrated. If you sleep, you're going to lose weight, you're going to be fitter, you're having better recovery. Everything. And sleep is such an underrated medicine. अगर आपकी sleep ठीक है ना, आई थिंक हम सब की प्रॉब्लम्स, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी. बट वी आर जस्ट नॉट विलिंग टू स्लीप. दैट इज अ प्रॉब्लम. वी वर्क ऑन योर स्लीप, थिंग्स आर सॉर्टेड. टेल मी अ लिटिल, से 2 or 3 myths जो सबसे ज़्यादा हार्म करती है व्हेन अ गर्ल इज ट्राइंग टू स्टार्ट हर फिटनेस जर्नी. जो मिथ्स हर जगह से आते हैं, कभी कभी तो फैमिली मेंबर्स से भी सुनने को मिलता है. ओके, नंबर 1, जिम मत जाओ, मस्कुलर बल्कि बन जाओगी. नंबर 2, प्रोटीन पाउडर से किडनी ख़राब हो जाएगी, लिवर ख़राब हो जाएगी. नंबर 3 वुड बी, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मिठाई खा लेंगे एक, या बिस्किट खा लोगे एक मील के बाद या चाय के साथ, उससे कुछ नहीं होता. एक दिन खाने से क्या होता, और ये एक दिन करके जो पाइलअप हो रहा है डेली, इसका कोई वैल्यू नहीं होता. 4th मिथ, अच्छा ये डिटॉक्स ड्रिंक पी लो, आपका वजन कम हो जाएगा. ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर मोस्ट वुमेन. डिटॉक्स ड्रिंक कल्चर, उनको लगता है इट वर्क्स. एक्सप्लेन अ लिटिल हाउ इट डजंट वर्क. how you like, what a question. Okay, how it doesn't work. आप सोचिए ना, आप जिस जीरे के साथ तड़का मार रहे हो, वो जीरा कैसे आपका वज़न कम करेगा? फैट लॉस कैसे करता है एक जीरा? मतलब आपके बॉडी में स्टोर है, आप क्या मतलब उसको पानी में डाल के पी रहे हो, ठीक है, मे बी आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, डेफिनेटली आपके ब्लोटिंग को कम करने के दीज हर्ब्स आर वेरी हेल्पफुल. यू कंज्यूम इट विद दैट कि ब्लोटिंग कम करना चाहिए. मुझे भी फेनल पानी पीना अच्छा लगता है. इट हेल्प्स मी विद माई ब्लोटिंग, इट हेल्प्स मी विद माई हार्मोनल हेल्थ के लिए. फ्लैक्सीड लेना, सीड्स लेना, आप लीजिए, बट मैजिकली कैसे वैनिश कर देगा, कैसे आप टोन्ड हो जाओगे. देन अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ वुमेन, स्पेसिफिकली वर्किंग वुमेन, दे गो फॉर rigorous hours of fasting. So they think if we don't eat, skip dinners, skip breakfast, skip meals, I'm going to lose weight. This is the biggest myth that most women are dealing with. Intermittent fasting आप कर सकते हो, if it's suiting your body, great, but it does not suit everybody, or women go wrong there because it can do more harm to you. A lot of my clients, हार्मोनल इश्यूज़ क्रॉप अप हो गया है, पीरियड्स इरेगुलर हो गया है, उनकी एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, गर्ट के इश्यूज़ आ गया है, बिकॉज उनको नहीं सूट किया. सो वन मिथ is that I want to clear and bust for all women here. If one policy suits one woman, it's not necessary कि वो आपको सूट करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी बायो इंडिविजुअल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई और को देख के अपने ऊपर वो आजमाना स्टार्ट ना करें. ये तुमने जो डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बात किया, कि वो जो कहते हैं कि सुबह उठ के ये पियो तो हो गया तुम्हारा वेट लॉस, हमने मिथ बस्ट किया कि वो नहीं होता. साइंटिफिकली प्रूवन जो एक तरीका है फॉर वेट लॉस, फॉर फैट लॉस, इज कैलोरी डेफिसिट. एग्जैक्टली. कैलोरी डेफिसिट को थोड़ा आसान भाषा में, से न्यू क्लाइंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सप्लेन कैलोरी डेफिसिट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हम सब का एक मेंटेनेंस कैलोरी होता है, ठीक है. अब एक बंदे को अगर अपना वेट लॉस करना है तो हम कैसे कर सकते, हम कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाएंगे, विच सिंपली मतलब है कि हम जो कैलोरी इनटेक करते हैं वो, और जो हम कैलोरी आउट करते हैं, इन दोनों में एक डेफिसिट, एक डिफरेंस होना चाहिए, जो कम होना चाहिए, एक वेरी डिफरेंस होना चाहिए, एक स्टार्क डिफरेंस होना चाहिए. तो हम अभी क्या हो रहा है, हमारा इनटेक क्योंकि ज़्यादा हो गया है हमारे आउट के साथ, इसलिए आपका वज़न बढ़ गया है. अब फैट लॉस करना है तो इसको हमें थोड़ा कम करना है, इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, और ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक कुछ करना है. हम शायद 300 से 400 या 500 कैलोरी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लोग ना 800 कैलोरी के डाइट प्लान में चले जाते हैं, एकदम रैम्पेंट वेट लॉस करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं. तो अब मेजॉरिटी 500 से ज़्यादा डेफिसिट कभी भी किसी को नहीं जाना चाहिए, 300 से 500 का रेंज में रखने का. तो आप जो खा रहे हो, लेट्स से वॉट एवर यू इनटेकिंग इन, इट हैज़ टू बी स्लाइटली लेसर देन वॉट यू आर बर्निंग. तो आप बर्निंग, आप या तो वर्कआउट से इसको कर सकते हो, या तो डेफिसिट खाना कम करके कर सकते हो. तो वो डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. तो दैट इज़ व्हाट कैलोरी डेफिसिट इज़ गोइंग टू डू फॉर यू. तो कैलोरीज हमको कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द फूड वी टेक इन, राइट. तो आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए और हम बर्न कर सकते हैं. मोस्टली व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, वैसे वी आर बर्निंग ऑल द टाइम, इवन व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी या स्लीपिंग या सिटिंग, हम हमेशा अपने कैलोरीज बर्न करते हैं, बट हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाई डूइंग वर्कआउट्स, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम.
Absolutely. Let's talk about strength training a little. We are almost towards the end of the podcast. कुछ और सवाल है. Hardcore gymming जब से start की, तब से what have been the few lifestyle changes? One of them तो I noticed itself कि एक कपड़े आपके साथ है या जिम में है. अभी podcast खत्म करने के बाद you will straight hit the gym. What else has been some of the lifestyle changes that you've made since you started hardcore weight training, strength training? Okay. Something that has worked emotionally very well for me is now I feel much stronger, not just physically but emotionally. So I don't take a lot of bullshit from people anymore. Just explain that emotional bit a little bit कि ये कैसे हुआ तुम्हें लगता है? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डेडलिफ्ट इतने का पेल सकती हूँ तो ऐसे छुटकू को तो ऐसे ही उठा के पटक दूँ. Love it. Love that line. Emotionally, it has done a great thing for me. Next is that, my functionality at home has improved a lot. So the daily function that would take me a lot of time to do, maybe थोड़ा टायर्ड लगना, फटीग, वो ख़त्म हो गई है. तो आई एम वेरी ऑन माई टोज. मैं घर के काम भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ. जैसे अब मैं यूजुअली मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ ना मैं. तो माई चैनल नाउ इन्वॉल्व्स इन शोइंग वुमेन रियल लाइफ, माई रियल लाइफ, हाउ एम इनकॉर्पोरेटिंग फिटनेस एवरी डे इन माई रियल लाइफ रूटीन. जैसे आई लर्न कथक ऑल्सो, आई हैव माई बिजनेस ऑल्सो, आई हैव माई इन लॉज, माई हस्बैंड, एवरीथिंग आई एम डूइंग. ओके, आई एम ऑन माई टोज. सो समथिंग हैज चेंज ड्रास्टिकली विथ माई जिम रूटीन. Of course, I'm building muscles, I'm maintaining my bone health, so that I've seen that my daily functionality has improved. कोई भी heavy सामान आराम से उठा लेती हूँ तो my father and mother-in-law is like, इतना heavy कैसे उठा लिया? मैंने कहा भैया अभी इतना उनको क्या बोलूँ कि मैं जिम में ये करती हूँ. कभी आओ मेरे साथ जिम में. तो they see my videos. तो अभी मैंने पुलअप्स सीखी हूँ. रिसेंटली मैंने पुलअप्स करना सीखा है. तो मेरी मम्मी ने उस दिन मुझे कॉल करके बोला, भाई तू ज़मीन पे तो इतना कुछ कर रही थी, अभी आसमान में उठ के क्या कर रही हो? नीचे ही रहो. मैंने कहा मम्मी अभी तो उड़ने का टाइम है, अभी तो उड़ने दो. तो ये डेली फंक्शनल चीज़ें अच्छी हो गई है. और मैंने जो इम्प्रूवमेंट देखा है, द क्लोथ फिट बेटर यार. आपके छोटे मोटे जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, छोटे छोटे जो मसल्स है ना, दे फिट बेटर. वो शेप जो मैंने कहा आपको, क्लाइंट आगे बोलते हैं कि टोन्ड लुक चाहिए, टोन्ड लुक. लेकिन जिम नहीं करना ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, जो टोन्ड लुक के बारे में. सो जिम एंड डाइट में अगर फोकस करोगे ना, डाइट तो करना ही पड़ेगा. बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिम करते हैं फिर डाइट नहीं करते. आपका नहीं चलेगा भाई, आपको डाइट करना ही पड़ेगा. तो अगर आप उसको बैलेंस में करोगे ना तो वो टोन लुक आएगी. आप मज़े में लाइफ एंजॉय भी कर सकते हो विदाउट गेनिंग वेट, बिकॉज यू नो द आर्ट ऑफ बैलेंस, यू नो व्हेन टू स्टॉप. वो भी जिम आपको एक डिसिप्लिन सिखा देती है. जिम टीचेस यू डिसिप्लिन एंड इमेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. These things really have helped me a lot. बिल्कुल, आई एग्री विथ यू सो मच. दिस समथिंग जो तुमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि पार्टी वार्टी में अभी भी जाती हो, बट यू मेंटेन व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. सेम मैं भी जैसे कोई शूट खत्म किया, रैप अप पार्टी है, जाना तो पड़ेगा ही. वो रैप अप पार्टी में पहले मैं कुछ भी खा लेता था, कुछ भी पी लेता था, चिप्स खाए जा रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज पी ले जा रहा हूँ. अभी आई मेक श्योर कि मैं खा भी रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ. आई किड यू नॉट, हर रैप अप पार्टी में मैं प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ और मैं साथ में दही मंगवा लेता हूँ. लोग लिजिट मुझे देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि पार्टी में दही खाने वाला एक सिर्फ कोरक ही दिखता है. सो वो चेंजेस आप ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर डाइट. क्विकली आई वांट टू आस्क यू एक, and this doesn't have to be just a girl who's a gym rat, even guys who are gym rats, नया शुरू किया है. रिकवरी के लिए आप क्या करते हो, तुम क्या करती हो? जिम खत्म हुआ उसके बाद का इमीडिएट रूटीन क्या होता है? आई टेक माई प्रोटीन, ठीक है, देन आई टेक अ गुड मील. डिपेंड करता है मैं कौन से टाइम में जा रही हूँ जिम करने. और ऐसे ही मेरा डिनर होता है या लंच होता है या ब्रेकफास्ट होता है, डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द डे. स्लीप प्लीज़, आप रिकवर स्लीप से ही करते हो. एंड एक्सेसिव जिम, जो जिम रैट है, दिस ओनली फॉर जिम रैट्स, एक्सेसिव जिम ना करें. कुछ लोगों का ओवर ट्रेनिंग ना करें. ओवर ट्रेनिंग, बिकॉज दैट हैज़ वर्स रिपरकशंस. ठीक है, इंजरी हो सकती है आपको, आपकी बॉडी कभी रिकवरी ना कर सकती है. तो प्लीज़ टेक केयर कि आप रेस्ट ले, प्रॉपरली ब्रेक. रेस्ट डे इज देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेस्ट डे, प्लीज फॉलो दैट. हाँ, ठीक है, प्लीज फॉलो दैट. Next is कि I've also have a problem with those people. Sometimes a lot of people can make their only life about gym, around gym. मतलब लाइफ में और कुछ भी नहीं है. I'm a little guilty of this. No, I have also gone through that phase. I swear I have gone through that phase. But even sometimes I can go to that. But because I have also kept myself busy in other things like my business, my family, my dance and all that thing. तो मुझे अभी पुल आउट करने का वो स्कोप मिल गया. तो मैं एज अ वेल विशर लोग कहना चाहूँगी
if you love gym and you're getting obsessed with gym, don't make your life and gym equal to life. उससे आप थोड़ा सा बचे, क्योंकि वो बहुत हो जाता है. सो इसलिए रिकवरी के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ भी करें, जैसे योगा मैं करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, डांस करती हूँ. सो दीज थिंग्स आई मेंटेन. इससे मेरी रिकवरी भी हो जाती है. सो मैं जिम के साथ आई डोंट हैव दोज मसल क्रैम्प. होता है ना लेग डे के बाद 4 दिन पड़े रहे, थोड़ा बहुत हो गया, बट क्योंकि मैं अपने बॉडी को वो समय देती हूँ, पहले नहीं देती थी, अब सीख गई हूँ देना, क्योंकि बॉडी ने डिमांड कर लिया है. एज अ वुमेन क्या होता है ना, हमारा हमेशा साइकिल, इतने सारे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन. सो वी आर डीलिंग विद हार्मोनल साइकिल ऑल द टाइम. तो बॉडी हर वीक सेम नहीं होता, हर वीक डिफरेंटली फंक्शन करता है. तो अगर मैं थोड़ा एक्सेसिव करती हूँ ना, तो माई बॉडी कमांड्स मी टू सिट, नहीं आज रेस्ट. तो वो मैंने सीख लिया है मैनेज करना. सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. लवली. कोई भी अच्छा पॉडकास्ट एक अच्छे रैपिड फायर के अलावा तो कंप्लीट हो नहीं सकता. ओके जी. तो अन्विषा, इट्स नाउ टाइम फॉर आवर रैपिड फायर. क्वेश्चंस विल बी रैपिड, आंसर्स हैव टू बी इवन मोर रैपिड. मतलब सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं. ओके. योगा मैट और बारबल? बारबल. बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, मॉर्निंग और इवनिंग? Whenever you have time. योर गिल्टी प्लेजर फूड? Cheesecake. अ सप्लीमेंट यू स्वेयर बाय? My protein powder. One beauty product always in your gym bag? Lip balm. One creator you'd love to collab with? I've already collabed with the Flying Beast, so Lovely. I love him. Most underrated fitness move? Sleep. First thing you do right after filming a YouTube video? Check myself on the camera. How am I looking? Is the angle fine? Am I been speaking all right? हाँ ऐसे ही. One word to describe your transformation journey? Spectacular. What's next for Anvisha? A book, a studio, something we don't know yet? Oh. Let's keep it a secret. Let's see where Anvesha goes. Okay. Favorite muscle group to train? Leg day. Of- Legs. of I'm a woman. course. I know. Of Leg course. day. Legs and glutes, of course. Yes, I know. चलो ठीक है. Leg के अलावा other favorite muscle part to train? Oh, I love shoulders. है ना? Me too. Okay. One favorite exercise from each muscle group. Shoulder का favorite exercise? Shoulder press. Chest का? Chest press. Biceps? Hammer curl. Triceps? Kickbacks. Abs? There are a lot of I love to do for abs. एक तो cable crunch. I love it. एक तो I love bird dog. I love bird dog. Reverse plank. Yes, very good. Very good. और legs? Squats. I love Bulgarian split squats. वो मुझे ओ बहुत भाई साहब, वो करने में जो हालत खराब होती है वो करने में हम बंदों Bulgarian तुम्हारा पीआर क्या है इन स्क्वाट्स? In back squat, my PR has been 75. अमेजिंग. अन्वेषा, दैट वाज आवर पॉडकास्ट. यार मुझे तो इतना मज़ा आया. आई एम वेरी हैप्पी कि न्यूट्रीबे के लिए वो पहला पॉडकास्ट जो मैं होस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ था. हाउ वाज इट फॉर यू? Great. I'm so happy to be here. आपके questions लाजवाब थे. एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा. एंड आई विश यू ऑल गाइज ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच गाइस. कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए ये पॉडकास्ट विद अन्वेषा आपको कैसा लगा. मेंशन इन द कमेंट सम ऑफ योर फेवरेट पार्ट्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू न्यूट्रीबे फॉर मोर ओरिजिनल कंटेंट जस्ट लाइक दिस. दिस इज मी योर दोस्त कोरक. अगले पॉडकास्ट में मिलता हूँ.